السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی سچی کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ کیا عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ مردوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، پر عورتیں چاہے بہن کی صورت میں ہوں چاہے محبوبہ کی صورت میں، کیا دھوکہ دیتی ہیں؟ جاننے کے لیے آج کی اس سچی کہانی کو ضرور سنیے، اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انٹولی اسٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ ابھی ابھی مجھ پر مایوسی کا دورہ پڑا تھا۔ کام کرتے کرتے میری طبیعت اکتا سی گئی تھی اور قلم چھوڑ کر میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ خیالات تھے کہ امٹ کر چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو میں ان خیالات کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ناکام ہو کر سر کو جھٹک کر اپنے ارد گرد دیکھا تو سب لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ مجھے ان پر بہت شک ہوا کہ وہ سب ان ذہنی الجھنوں سے دور تھے، تو پھر میں کیوں؟ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، قبل اس کے کہ کوئی بآواز بلند اظہار کر بیٹھتا۔ میری نظر اسد سے ٹکرا گئی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرا دیا۔ وہ میرا بہت اچھا کولیگ تھا، بہت ہی خوش مزاج اور کام آنے والا باتونی لڑکا۔ اس کی مسکراہٹ نے گویا آگ پر پانی ڈال دیا اور میں اپنی کیفیت سے باہر آ گیا۔ جواباً میں نے بھی اسد کو مسکرا کر دیکھا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 6 بجے آفس سے چھٹی ہونے پر میں باہر نکلا اور سیدھا اپنے اپارٹمنٹ پہنچا۔ گھر جا کر کافی دیر تک میں شاور لیتا رہا، گویا اپنی یادوں سے چھٹکارا پا رہا تھا۔ پھر فریش ہو کر میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور گیلری میں آ گیا۔ گیلری میں کھڑا ہونا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ یہاں آتے ہی میں وہ سب کچھ بھول جاتا جو میں یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 3 سال ہونے کو تھے۔ یہ میرے دوست کا فلیٹ تھا جو خالی تھا اور اس نے مجھے رہنے کے لیے دیا تھا۔ ابھی میں وہیں کھڑا تھا کہ فون کی آواز آئی۔ گھڑی دیکھی، 8 بجنے والے تھے۔ ارے آج تو کافی ٹائم ہو گیا، مجھے 8 بجے محمود کو فون کرنا تھا۔ پھر ہم لوگ کھانا کھاتے اور رات گئے گھر واپسی ہوتی، پھر آ کر میں سو جاتا اور صبح آفس۔ بس یہی میری زندگی تھی۔ میری زندگی میں صرف محمود ہی میرا دوست ہے، باقی کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی گھر والا نہیں۔ ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں تھے۔ بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور ایک بہن مجھ سے چھوٹی تھی۔ بیچ کا ہونا بھی میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ نہ بڑا ہونے کا فخر میرے حصے میں آتا تھا اور نہ ہی چھوٹا ہونے والا لاڈ۔ جس طرح ماں باپ کی محبت مجھ تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گئی تھی، اس طرح ہر چیز بھی شاید عید پر ہی میرے لیے نیا جوڑا بنتا تھا، ورنہ تو سارا سال بڑے بھائی کے کپڑے، جوتے، کورس بیگ میرے حصے میں آتے۔ جیسے تیسے وقت گزرتا رہا، بڑے بھائی ابو کی زندگی میں کام کرنے لگے تھے، اس لیے گھر کے حالات میں کچھ معمولی سی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں اپنے الگ الگ گھر کا خواب دیکھ رہے تھے اور اس لیے گھر میں نہ ہونے کے برابر خرچہ دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے اپنے فلیٹ کی قسطیں بھی بھر رہے تھے اور اپنے لیے لڑکیاں بھی پسند کر چکے تھے۔ پھر جیسے ہی ان کو فلیٹ کا قبضہ ملا، یکے بعد دیگرے شادی کر کے وہ دونوں اپنے گھر شفٹ ہو گئے اور رہا سہا تعلق بھی ہمارا ان سے ختم ہو گیا۔ تیسرے بھائی اچھے تھے، وہ سب کا خیال رکھتے تھے، ابو کو بھی ان سے بہت امیدیں تھیں، لیکن قسمت دیکھیے کہ ان کا اپینڈکس پھٹ جانے سے وہ جوانی میں ہی خواب سجائے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ابو خاص کر اس حادثے کے بعد بہت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ابھی ایک بھی بیٹی بیاہ کر نہیں گئی تھی۔ اماں پریشان تھی، لیکن مجھ سے بڑے بھائی نے ابا کو تسلی دی کہ ان کے کالج کا آخری سال تھا۔ انہی دنوں بڑی آپا کا اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے فوراً ادھر ادھر سے قرضہ لے کر آپا کو بیاہ دیا۔ ابھی ابا تھوڑا سکون میں ہی آئے تھے کہ بڑے بھائی کا کالج سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل جاتے جاتے ہمیں چھوڑ گئے۔ یوں لگتا تھا کہ موت نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا۔ ابا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور چپکے سے انہوں نے بھی موت کو گلے لگا لیا۔ ہم لوگ اس پے در پہ صدمے سے بالکل ہی نڈھال ہو چکے تھے۔ باقی مسائل بھی سر اٹھائے کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنیں ابھی ابھی گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اب میں ہی اس گھر میں مرد بچا تھا۔ اس وقت میں انٹر کر چکا تھا۔ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، مگر حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں نے ابا کے دفتر میں ہی اپلائی کر دیا۔ خوش قسمتی سے نوکری مل گئی اور گھر کی گاڑی پھر سے چل پڑی۔ اب اماں اور 2 بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اماں بیمار رہنے لگی تھیں۔ میں تو سارا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ شام کو جب گھر واپس آتا تو اماں اکیلی چارپائی پر لیٹی ہوئی ہوتی اور دونوں بہنیں یا تو باتیں کر رہی ہوتی یا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ ان کو ہوش ہی نہیں تھا کہ اماں کی فکر کر لیتی۔ میں جب کہتا کہ اماں کو بھی دیکھ لیا کرو تو وہ اتنا تڑخ کر جواب دیتی جو باہر لیٹی اماں بھی سن لیتی۔ اماں ابا نے بچے تو اتنے سارے پیدا کر لیے تھے، لیکن آپس میں پیار محبت کسی میں نہیں تھا۔ چھوٹے تھے،
लड़ झगड़ कर टाइम पास हुआ। बड़े हुए तो एक दूसरे से लाताल्लुक हो गए। अब्बा तो रहे नहीं थे और अम्मा को ये एहसास बहुत देर से हुआ था, जब तक पानी सर से ऊंचा हो चुका था। अम्मा शायद कुछ और दिन जिंदा रहती अगर बहनें उनका ख्याल कर लेती। शौहर और बेटों की जुदाई और बेटियों की बदतमीजी ने अम्मा को भी जल्द हमसे दूर कर दिया। मैं तो इतने सदमे सहने की हालत में था ही नहीं, लगता ही नहीं था कुछ बचा है हमारी जिंदगी में। अब्बा अम्मा ही तो मेरा साहिबान थे, वो मेरे माँ बाप थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहनों से लिपट कर खूब रहूं या बड़े भाई मुझे गले लगाएं, मगर वो सब तो खाना पूरी के लिए आए थे। और बहनें जो घर पर मौजूद थी, ऐसा लग रहा था शायद वो अम्मा को बोझ समझने लगी थी। जब उतर गया, मैं कई दिन तक खाली खाली घर देखकर बहुत तकलीफ में रहा। महमूद मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सहारा दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर पहले जैसे हालात होने लगे। मैं सुबह जब काम के लिए निकलता तो दोनों बहनें सो रही होती। मैं पहले होटल जाता, नाश्ता करता, फिर ऑफिस चला जाता और लंच में ऑफिस में ही करता था। शाम को घर जाता तो ऐसा लगता कि दोनों को मेरा आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी कमरे में ही बंद रहता। मेरा दिल चाहता कि हम लोग मिल बैठकर बातें करें, खाना खाएं। अब वो दोनों मेरी जिम्मेदारियां थी। मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लिया और पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा ताकि ज़्यादा जल्दी पैसे जमा करूं और उनकी शादियां कर सकूं। मगर मेरी बहनें तो कुछ और ही मंसूबा बनाए बैठी थी। एक दिन मेरे सर में दर्द था। मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। घर आया तो देखा घर में एक लड़का बैठा है। वो अजनबी लड़का था। मैंने उसको अब तक अपने घर में नहीं देखा था। वो दोनों खूब हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। मेरे आने पर वो लड़का घबरा गया, लेकिन उनकी दीदा दलेरी वाज़े नजर आ रही थी। वो घबराई नहीं। मैंने पूछने पर सिर्फ इतना कहा, यह मुनीर है। मुनीर तो मुझे देखकर खिसक गया। अब जब मुझे पता चल गया कि मुनीर को भी घर में मेरी हैसियत का अंदाज़ा हो चुका है, तो वो अक्सर घर में नजर आने लगा। छोटी बहन ने बताया कि आपा इससे शादी करना चाहती हैं। तो मैंने मुनीर से बात की, उसके घर वालों से मिलने का कहा, तो मालूम हुआ उसका कोई नहीं। उसको चच्ची ने पाला था। नौकरी भी कोई खास नहीं है, किसी दुकान पर सेल्समैन था। मैंने मना कर दिया, लेकिन दोनों बहनों ने साफ कह दिया कि वो शादी अपनी मर्जी से करेंगी। मैंने जब कोई चारा नहीं देखा, मोहल्ले में भी बातें हो रही थी। अब्बा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बुलाकर समझाया, तो मैंने भी सादगी से निकाह कर दिया। लेकिन ये तो उल्टी मुसीबत गले में पड़ गई, क्योंकि मुनीर ने बजाय मेरी बहन को ब्याह कर ले जाने के खुद हमारे घर में डेरा डाल लिया। मैंने उस पर काफ़ी उसको बुरा भला कहा, लेकिन यहाँ तो मेरी बहन ही उसकी हिमायत कर रही थी। मुझे मजबूरन खामोश होना पड़ा। मुझे तो अब छोटी की फिक्र थी। मुनीर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। यही बात जब मैंने बड़ी से कही तो वो हत्ते से उखड़ गई और इतना वावेला किया कि मोहल्ले वाले आ गए। बड़ी बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं इन तीनों को निकाल कर घर पर कब्जा करना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि मेरी बहनें मुझ पर, अपने भाई पर, सगे भाई पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, जबकि मैं तो उनकी दिन रात फिक्र करता था। क्या ये सगे बहन भाई ऐसे होते हैं? मेरा ख्याल था कि माँ बाप के बाद हम सब में एतमाद और मोहब्बत मजबूत हो जाएगा, मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा था। दरअसल उन तीनों का मकसद मुझे वहाँ से हटाना था। ये घर हमारे वालिदैन का था, जिस पर हम सबका हक था, मगर बड़े भाई लाताल्लुक हुए थे। आपा ने भी हिस्सा लेने से मना कर दिया था। ये बात भी मुझे बाद में पता चली। पता नहीं ये लोग कब से मंसूबा बना रहे थे। अब मैं ही उनका कांटा था जिसको वो दूर करना चाह रहे थे। बड़ी ने खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए और मोहल्ले वालों को ये यकीन दिला दिया कि मैं उसके मियाँ को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। उसका मियाँ बेरोजगार है और वो उसको कहीं लेकर चला जाएगा, क्योंकि भाई जुल्म कर रहा है। और अगर मैं अपने शौहर के साथ चली गई तो छोटी का क्या होगा? उसको कौन देखेगा? घर पर तो भाई पूरे दिन नहीं होते हैं। मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि बेटा, तुम तो नौकरी करते हो, कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लोगे। ये बेचारियां कहाँ किराए के घर में रुलती रहेंगी। तुम ये घर इन दोनों बहनों के नाम कर दो, जैसे तुम्हारे बड़े भाई बहन यहाँ से निकल चुके हैं। मुझे मकान से सिर्फ इतना लगाव था कि ये मेरे माँ बाप की निशानी थी, मगर जब दोनों को मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे क्या करना था? मैंने अपने कपड़े उठाए और दरो दीवार पर आखिरी नज़र डालता हुआ घर से निकल गया। इस सिलसिले में महबूब ने मेरी बहुत मदद की और उसने अपना ये फ्लैट मुझे रहने को दे दिया। मुझे घर छोड़े हुए 5 साल हो गए थे। पिछले 2 साल में एक दोस्त के साथ रहा, फिर जब उसके वालिद ने उसकी शादी कर दी तो मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। फिर मैं महमूद के फ्लैट में आ गया। महमूद मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसी के मशवरे पर मैंने तालीम हासिल की और नौकरी के साथ साथ कोचिंग भी की, और अब मैं MBA की तैयारी कर रहा था। मेरी नौकरी पक्की हो गई थी और तनख्वाह भी बढ़ गई। इसी खुशी में कपड़े और मिठाई लेकर
जब मैं घर गया तो मालूम हुआ कि वो दोनों घर बेचकर कहीं और चले गए हैं और इसके लिए उन्हें मुनीर ने ही मजबूर किया था। वो एक फ्रॉडिया था और मेरी बहनों को लूट कर वो वहाँ से चला गया। अब वो किस हाल में थी मैं नहीं जानता था। मैं क्या कर सकता था? मैंने तो दोनों को बहुत समझाया था। मेरे पास उनका कोई पता नहीं था। अफसोस करता हुआ, दिल पर पत्थर रखता हुआ वापस आ गया। मेरी ज़िंदगी का ये बाब अब हमेशा के लिए बंद हो गया, क्योंकि मेरी 2 बहनें ही थी जिनके साथ मेरा रिश्ता था। अब वो भी मेरे साथ नहीं थी। बाकी बहन भाइयों को तो कोई फिक्र ही नहीं थी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। खूनी रिश्ते क्या इस तरह भी ख़त्म हो जाते हैं? मैं ये सोच भी नहीं सकता था। खैर, मैंने अब खुद को फलाही कामों में मसरूफ़ कर लिया। किसी को हॉस्पिटल का मसला हो या स्कूल में दाखिल या किसी की शादी या नौकरी का, मैं पूरी कोशिश करता कि उनकी मदद कर सकूं। इस तरह मुझे बहुत सुकून मिलता था। बस कभी कभी अपनों की याद सताती तो दिल बेचैन हो जाता था। महमूद मुझे शादी करने का मशवरा दे रहा था, मगर मैं इनकार किए जा रहा था। मैं इन चक्करों में कभी नहीं रहा था और अपनी बहनों के रवैये के बाद तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई लड़की कैसे एतबार के काबिल होगी। अगर आने वाली भी मेरी बहनों जैसी ही निकली, तेज तर्रार और शातिर, लालची, अगर वो भी मुझे मेरे घर से निकाल दे तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं औरत ज़ात से डरने लगा। इन्हीं उलझनों में वक्त गुजरता रहा। फलाही कामों में मुझे कुछ बेवा औरतों और तलाक याफ्ता औरतों से भी वास्ता पड़ा। मैं उन औरतों से मिलकर काफ़ी हैरान हुआ। इतनी अच्छी, सुलझी हुई, मेहनती औरतें महज अपने बच्चों की खातिर मेहनत मजदूरी करने को तैयार थीं। कम गो, सादा मिजाज औरतें। उनमें से 2 को तो मैंने नौकरी लगवाई और 1 को सिलाई मशीन दिला दी। 1 के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया। फिर अचानक ही मेरे जहन में ये बात आ गई, क्यों ना मैं ऐसी ही किसी बेवा या तलाक याफ्ता का सहारा बन जाऊं। ये तो सवाब का काम है। जब महमूद से मैंने इसका जिक्र किया तो वो पहले खूब हंसा, फिर समझाने लगा, बज़ाहिर ये बहुत आसान है मगर बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना होगा। मैं अपने फैसले पर कायम रहा। अगर कोई ऐसी औरत मिली जो खुद भी सहारे की ख्वाहिशमंद होगी तो मैं उसका हाथ थाम लूंगा। मेरी शख्सियत इमरान के सामने थी, इसलिए वो समझ गया कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा और मैं बहुत अच्छा शौहर साबित होऊंगा। मैंने ये बात पूरी संजीदगी से की थी, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझसे कहा, अगर ऐसी औरत मिलती है तो फौरन शादी कर लेना, अकेले ज़िंदगी ना गुजारो। एक दिन मैं ऐसे ही महमूद को मैसेज कर रहा था कि वो गलती से किसी दूसरे नंबर पर चला गया, क्योंकि जवाब कुछ और आया था। मैंने सॉरी का मैसेज भेजा, जवाबन उधर से भी हल्का फुल्का मैसेज आ गया। मैं उस दिन न जाने किस मूड में था कि मैंने भी बराबर मैसेज किए। हालांकि मैं इन फजूलियात से दूर रहता हूँ। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। अब मेरी रोज़ाना मैसेज के ज़रिए बात होने लगी। पहले तो वो खुद को मर्द जाहिर करके बात करती रही, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई फजूल मैसेज नहीं गया तो फिर उसने अपना अधूरा तारुफ करा दिया। खैर, मुझे इस बात की कोई खोज नहीं थी। वो जैसे बात करती मुझे वैसे ही अच्छा लगता था, मैं उसको वैसे ही जवाब देता। मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया था, जो सच था सब बता दिया। आवाज़ से वो मुझे काफ़ी यंग लगी थी और मैं समझा शायद वो कोई डरी सहमी लड़की है जिस पर वालिदैन सख्ती करते हैं, क्योंकि बकौल उसके वो छुपकर बात करती थी। वो काफ़ी सुलझी हुई गुफ्तगू करती थी। इसका मतलब था कि वो पढ़ी लिखी है। मेरे हालात जानकर उसने भी मुझे शादी का मशवरा दिया। जवाबन जब मैंने अपनी मर्जी बताई तो वो काफ़ी हैरान हुई। फिर उसने भी मुझे समझाने की काफ़ी कोशिश की, मगर मैंने टाल दिया। हमारी ये साफ सुथरी दोस्ती मैसेज के जरिए चलती रही। मैंने कोई घटिया बात कभी उससे की ही नहीं थी, इसलिए वो मुझे बहुत पसंद करती थी। अब हम काफ़ी बातें शेयर करने लगे। वो एक कंपनी में जॉब करती थी। मैंने उसके माली हालात की वजह से कई बार मदद की पेशकश भी की, जो उसने मना कर दिया। फिर जब उसने बताया कि वो बेवा है और 2 बच्चों की माँ है, तो मुझे उससे सचमुच हमदर्दी हो गई। वो वाकई बहुत अच्छी थी। इन हालात में भी उसने मेरी किसी पेशकश का फ़ायदा नहीं उठाया। बकौल उसके उसे सिर्फ अच्छे दोस्त की तलाश थी जिससे वो अपने दिल का हाल कह सके। साल हो गया था, मैं अब उसका आदी हो गया। जिस दिन उसका मैसेज नहीं आता, मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता। मैंने उसे प्रपोज कर दिया, मगर उसने इनकार कर दिया कि उसका मेरा कोई जोड़ नहीं। मैं समझा कि शायद वो मेरे गैर शादीशुदा और अपने बेवा होने की वजह से कह रही है। मैंने अपने घर और ऑफिस का पता भी दे दिया ताकि वो तसल्ली कर ले और जिससे चाहे मालूमात कर ले, मगर उसने इनकार किए रखा। अब हम फ़ोन पर ही बात करते थे। मैंने मिलने पर बहुत इसरार किया, मगर वो नहीं मानी। अब फिर मैंने महमूद को बता दिया। हस्बे मामूल उसने मुझे बहुत डांटा, मगर मेरी संजीदगी देखकर, आखिर तेरे जैसा बंदा उसको मिलेगा कहाँ,
इसी तरह तकरीबन 1.5 साल हो गया। अचानक उसका मैसेज और फ़ोन आना बंद हो गए। कोई जवाब नहीं आ रहा था, कभी नंबर बंद और कभी मसरूफ़। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरे पास तो सिवाय नंबर के और कुछ भी नहीं था। तकरीबन 1 माह बाद मुझे एक लेटर मिला। ये उसी का खत था। लिखा था, इमरान, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं आपके खुलूस की बहुत कदर करती हूँ। आपने जो पेशकश मुझे की थी उसके हवाले से मैंने बहुत सोचा। फिर आपके दिए गए पते पर मैंने आपको देख भी लिया। यकीन जानिए, आप किसी भी लड़की को खुश रख सकते हैं। फिर आप यूं ख्वामखा खुद को कांटों में घसीट रहे हैं। आपने मुझे नहीं देखा। मुझे सहारे की ज़रूरत तो थी, इसलिए मैंने आपको चुपके से देख भी लिया। लेकिन फिर मुझे आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं हुई। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ और मुझे एक मैच्योर सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बातों से आप काफ़ी समझदार लगे हैं। मगर उम्र का फ़र्क बहरहाल मायने रखता है, इसलिए मैंने अपनी वालिदा के बताए हुए एक रिश्ते पर हाँ कर दी है और अभी पिछले हफ्ते ही मेरा निकाह हुआ है। अब मेरा आपसे राब्ता नामुमकिन है। मेरी आपके लिए दुआएं हैं और यह गुजारिश है कि आप किसी अच्छी और अपनी हम उम्र लड़की से शादी कर लें। मैं आपसे हमेशा यूं ही बात करती रहती, लेकिन क्या करूं कि अब आपसे बात नहीं कर सकूंगी क्योंकि मेरे शोहर का हुक्म नहीं है। खत पढ़कर मैं दिल बर्दाश्ता हो गया। पता नहीं मेरे खुलूस और मोहब्बत में कहाँ कमी थी जो कोई मेरा बन ही नहीं सका। मैं उसको बेवा और अपनी उम्र से बड़ा होने के बावजूद कबूल कर रहा था, क्योंकि वो पहली औरत थी जिसको मैंने सुलझा हुआ पाया था। लेकिन शायद मैं उसके मयार पर उतरा नहीं और मेरी ये मोहब्बत अधूरी ही रह गई। अब शायद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकूं। मेरा दोस्त मुझसे कहता है शादी कर लो, लेकिन मैं किससे शादी करूं? हर औरत मुझे धोखेबाज लगती है। पहले मेरी बहनें और अब ये औरत जिसने मुझसे इतने साल बात की, लेकिन अब तक मुझे पहचान नहीं सकी कि मैं उसको धोखा नहीं देता, हमेशा उसको सर का ताज बनाकर रखता। पर यह औरत, इसको समझना बहुत मुश्किल है।